नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल डीएनझा ऑफिशियल पर। साथियों, आप सभी जानते हैं कि NIOS DLED के संबंध में रिव्यू पिटीशन का ऑर्डर 10 दिसंबर 2024 को आया था, लेकिन इसके बाद भी उत्तराखंड के जो साथी थे, खास करके आप देख सकते हैं कि उसमें विश्वनाथ जी की जो टीम थी और जो पैटिशनर्स थे, उन लोगों को 10 दिसंबर 2024 के जजमेंट के बाद भी बहाली में शामिल नहीं किया जा रहा था। इसके लिए वो लोग हाई कोर्ट के माध्यम से ट्रांसफ़र पिटीशन लेकर पुनः सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में पुनः इसकी सुनवाई हुई और इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश निर्गत किया गया। अब जो जजमेंट का ऑर्डर कॉपी है वो वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। इसी जजमेंट कॉपी को हम आपके बीच रख रहे हैं। आप थोड़ा धैर्यपूर्वक हमें सुने, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। जितनी भी बिंदु है, प्रत्येक बिंदु को हम समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो आइए, पहला पॉइंट है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है, उसमें पहला पॉइंट है, बाय वे ऑफ दिस एप्लीकेशन the applicants have approached this court for a direction on the respondent to permit the applicants who are holding the 18 months DLED qualification from the National Institute of Open Schooling under the open and distance learning mode to participate in the ongoing counseling process and to subsequently be appointed to the vacant post in the ongoing recruitment। तो पहली बात आप समझ गए होंगे कि एप्लीकेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में पुनः अप्रोच किया है कि जो ऑनगोइंग प्रोसेस है उसमें उन्हें शामिल किया जाए, और शामिल करने के लिए याचिकाकर्ता ने पुनः कोर्ट में आवेदन दिया है। दूसरा पॉइंट है, द केस हैज़ चेकर्ड हिस्ट्री। द केस हैज़ ए चेकर्ड हिस्ट्री मतलब इस केस की स्थिति उतार चढ़ाव भरी रही है, इनका इतिहास। In 2017, an amendment had been carried out to the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009, herein after referred as to RT Act wide, which clause 2 was inserted in section 23 of the said act. The Right to Free and Compulsory Education Amendment Act 2017 was made retrospective applicable from 31st March 2015. It was provided that every teacher who had been appointed or was in service as on 31st March but did not possess the minimum qualifications of 2 years as laid down under subsection 1 of section 23 would acquire such minimum qualification within a period of 4 years from the date of commencement of the Amendment Act 2017। यानी कि जो 2017 में ऐसा एक एक्ट बनाया गया, कानून बनाया गया कि जो 31 मार्च 2015 या उससे पहले तक जो भी टीचर कार्यरत हैं और उनके पास न्यूनतम योग्यता 2 वर्षीय DLED डिप्लोमा नहीं है, वो सभी शिक्षक 4 वर्षों के अंदर ऐसे न्यूनतम डिप्लोमा को धारण करेंगे। In view of the provisions of the second provisions to subsection 2 of section 23 of the RT Act, Ministry of Human Resources Development MHRD had issued a letter on 3rd August 2017 to all the secretaries of states and union territories directing that all the teachers in government school must possess minimum qualification as mandated under the RT Act, and a last chance was being given to such teachers to acquire minimum qualification till 31st March 2019. Failure to acquire the said qualification within the stipulated period would result in dismissal from service। अब इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि जो इस बात को ध्यान में रखते हुए 3 अगस्त 2017 को MHRD के द्वारा सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव को लेटर जारी किया गया, डायरेक्ट किया गया, दिशा निर्देश दिया गया कि ऐसे टीचर्स को जो RT एक्ट के तहत मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं, उन सबको एक चांस दिया जाए। उन सबको 31 मार्च 2019 तक जो
सेट डिप्लोमा है, डिग्री है, वो उसको जो न्यूनतम योग्यता है हासिल कर लेनी है, अन्यथा की स्थिति में उन्हें सर्विस से डिसमिस कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 5, since the time gap between 31st March 2015 as provided in the 2017 Amendment Act and 31st March 2019 as specified in the direction issued by the MHRD was 18 months, the NCT issued a recognition order dated 22nd September 2017 for conducting DLED program through ODL mode by NIOS through the SWAYAM portal of MHRD for in-service untrained teachers at elementary level working in government unaided and unaided private schools. The said recognition order also reduces duration of diploma from 2 years to 18 months. अब इसके आलोक में चूंकि जिस समय ये 2017 में पहले तो 2015 तक के टीचर्स को लिया गया था, लेकिन ये अमेंडमेंट एक्ट 2017 में आया, और 17 में जब ये अमेंडमेंट आया 22 सितंबर 2017 को, जब एनसीटी इसे रिकॉग्निशन ऑर्डर दे रही थी, रिकॉग्नाइज्ड कर रही थी कोर्स को, तो उस समय तक जो 31 मार्च 2019 है उनके बीच में टाइम गैप 18 मंथ्स का ही था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसके लिए एनसीटी ने ही उस कोर्स को 2 इयर्स के बदले उसका जो ड्यूरेशन था उसे 18 मंथ्स कर दिया था। हालांकि कोर्स में पूरे मटेरियल 2 इयर्स का था और 6 मंथ इंटर्नशिप उसके अंदर सब शामिल था। इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है। तो एमएचआरडी के कहने पर एनसीटी ने उसको रिकॉग्नाइज्ड किया, और चूंकि ड्यूरेशन कम था इसलिए इस कोर्स को 2 ईयर्स से 18 मंथ्स एनसीटी ने ही किया था। आगे बढ़ते हैं। सब्सिक्वेंटली द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इश्यूड डिस्ट्रिक्ट वाइज एडवर्टाइजमेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर इन द प्राइमरी स्कूल इन अकॉर्डेंस विद द उत्तराखंड गवर्नमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन टीचर सर्विस रूल्स 2012 for short 2012 rules framed by the government of Uttarakhand, which provided that for being eligible to be appointed as teachers it was necessary to have a diploma course of 2 years or equivalent. अब कह रहा है कि इसी सिलसिले में उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक एडवर्टीजमेंट जारी की जाती है प्राइमरी टीचर्स के लिए 2012 के नियम के अकॉर्डिंग, और उसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाता है वो 2 इयर्स डीएलएड डिप्लोमा की रखी जाती है। पॉइंट नंबर 7, इनिशियली ऑन 15 जनवरी 2021 द सेक्रेटरी Government of Uttarakhand issued a letter to the Director Elementary Education Uttarakhand to permit such candidates who passed 18 months DLED diploma of NIS through ODL mode to apply for the post of assistant teachers against vacancies issued through the aforementioned district-wise advertisements. This was done in compliance with the letter dated 6 January 2021 issued by the NCT to the Chief Secretariat to all the states and union territories, requesting them to consider all those candidates who had completed DLED course of NIOS through ODL mode. However, shortly thereafter, upon realizing that the 2012 rules did not recognize the 18 months DLED diploma through ODL mode from NIOS as a minimum qualification for eligibility, the government of Uttarakhand issued another communication dated 10th February 2021, whereby its earlier letter dated 15th जनवरी 2021 was withdrawn. तो आप सभी को साथियों याद होगा, यहाँ कहा जा रहा है इस पॉइंट में कि उत्तराखंड सरकार ने इनिशियली 15 जनवरी को अपने सभी जो द सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड डायरेक्टर को एलिमेंट्री एजुकेशन उत्तराखंड को परमिट करता है कि ऐसे कैंडिडेट्स को बहाली में शामिल करने के लिए। फिर वो देखती है कि जो बहाली है, और ऐसा वो इसलिए करती है कि 6 जनवरी 2021 को पटना हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद एनसीटी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक लेटर जारी किया था कि ये डिग्री ऑल पर्पसेस वैलिड होगा, सभी टीचर्स का एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा पूरी तरह वैध है, जो आप सब उसको शामिल कीजिए। तो 6 जनवरी 2021 के लेटर, एनसीटी के लेटर को आधार बनाकर सभी को उसमें शामिल किया जाता है। लेकिन बाद में उत्तराखंड की सरकार को ऐसा लगता है कि ये जो 2012 का उनका सर्विस रूल्स है, जो जिसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा की बात की जा रही है, इससे इनका उल्लंघन हो जाएगा, और इसमें वो 10 फरवरी 2021 को एक कम्युनिकेशन ऑर्डर निकालती है और
15 जनवरी 2021 को, जिनमें उन्होंने सभी को इसमें शामिल करने की बात की थी, वो वापस ले लेती है। अर्थात ये कहकर कि हमारे सर्विस रूल में 2 इयर्स डिप्लोमा ही मान्य है, ये 18 मंथ डिप्लोमा नहीं चलेगा। विवाद वहीं से फिर शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। The aforesaid communication dated 10th February 2021 was challenged in bunch of writ petitions before the High Court of Uttarakhand at Nainital on 14th September 2022. The High Court held that the 18 months DLED training diploma conducted through the ODL mode by NIOS cannot be said to be lower or inferior qualification as compared with the 2 years DLED program, and the same was valid for applying against the post of assistant teacher in the state of Uttarakhand. अब सरकार के इस आदेश को वापस लेने के बाद बहुत सारे रीट पिटिशंस जो नैनीताल, जो हाई कोर्ट है, उत्तराखंड की जो हाई कोर्ट है नैनीताल में, वहाँ पर बहुत सारे रिट पिटिशंस 10 फरवरी 2021 को उसको सरकार के आदेश को चैलेंज किया जाता है। और 14 सितंबर 2022 को हाई कोर्ट नैनीताल उत्तराखंड, यानी नैनीताल में जिसका मुख्यालय है, उसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि ये जो कोर्स है इसे आप 2 इयर्स डिप्लोमा से इन्फीरियर या लोअर नहीं कर सकते हैं, ये एक वैलिड डिप्लोमा है। और इन सभी एप्लीकेंट्स को बहाली में, यानी पेटिशनर्स को बहाली में, यानी उत्तराखंड में जो भी NIOS DLED कैंडिडेट हैं उन्हें बहाली में शामिल करने की बात कही गई। चैलेंजिंग द एफोर्सेड जजमेंट एंड ऑर्डर पास्ड बाय द हाई कोर्ट, ए batch of appeals came to be filed before this court. The said appeals were decided in the case of Javeer Singh and others versus State of Uttarakhand and others dated 28th November 2023. In the said judgment, in which one of us was a member, this court upheld the validity of the 2012 rules. अब कह रहा है कि ऐसे ही जो चैलेंज सरकार ने इस जजमेंट को, हाई कोर्ट के जजमेंट को पुनः चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट आया तो उसमें जो 28 नवंबर 2023 को फैसला दिया गया, उसमें जो फैसला आया उसमें न्यायाधीश कह रहे हैं कि मैं भी उसमें एक मेंबर था, सदस्य था उस फैसले में, और मैंने 2012 के सर्विस रूल का समर्थन किया, अर्थात उस 2 इयर्स रूल्स को समर्थन मैंने दिया, ऐसा जज साहब अपने आदेश में लिख रहे हैं। 10th नंबर पॉइंट है, इन द एफोरसेड केस इटसेल्फ दिस कोर्ट हैड क्लैरिफाइड दैट द स्कीम वाज which was framed by the government of India, while the aforementioned recognition order was done in order to provide a one-time opportunity to such of the teachers who were already in employment as on 10th August 2017 to get a qualification of a diploma course as required under section 23 subsection 2 of the RT Act, which has been inserted by the 2017 Amendment Act with retrospective effects from 1st April 2015। यानी ये जो कह रहा है कि उसमें जो डिसीजन में कहा गया कि जो क्लैरिफाइड दैट द स्कीम वाज, जो किया गया था कोर्स 10 अगस्त 2017 से पहले तक जो भी डिप्लोमा धारक वो किए थे, वो RT एक्ट के भी इंसर्ट किया गया था और वन टाइम कोर्स था, और 2017 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये लोग किए थे। जो आगे आप अगले पॉइंट्स को देखते हैं। पॉइंट नंबर 11, इट हैज़ ऑल्सो बीन हेल्ड बाय दिस कोर्ट दैट द पीरियड ऑफ 18 months हैड बीन प्रिस्क्राइब्ड इन ऑर्डर टू मीट द डेडलाइन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 ऑफ द RT एक्ट। Noticing how this was a one-time opportunity to ensure that in-service teachers remained in service, this court had held that it would not be equivalent to 2 years diploma, which is the requisite qualification. उन्होंने कहा कि उस जजमेंट में जो 28 नवंबर 2023 को आया था, इसमें क्लियर किया गया था कि ये डिप्लोमा वन टाइम कोर्स था और 2 इयर्स डिप्लोमा के इक्विवेलेंट नहीं है, ऐसा जज साहब के द्वारा कहा गया था। लेकिन उनके द्वारा ऐसा भी कहा गया था ये वन टाइम कोर्स उन टीचर्स के लिए है जो 10 अगस्त 2017 तक शिक्षक थे, यानी उनके लिए जज साहब के अकॉर्डिंग उन्होंने उन शिक्षकों के लिए इसे अवैध नहीं कहा था। It appears that there was some confusion in some of the states and therefore review petitions miscellaneous applications were filed। कह रहा है कि ऐसा लगता है कि इस जजमेंट से कुछ स्टेट्स को कन्फ्यूजन था, इसलिए रिव्यू पिटिशंस और मिसलेनियस एप्लीकेशंस फील्ड किया गया है। दिस कोर्ट हैड डिक्लाइन टू इंटरटेन
entertained the review petitions, miscellaneous applications on the ground that the judgment was clear enough, and it held that one-time scheme was provided solely to safeguard the interest of those teachers who were employed as on 10th August 2017। कह रहा है कि ये कोर्ट जो है मिसलेनियस एप्लीकेशन और जो जजमेंट इस कोर्ट का था, तो कह रहा है कि इसलिए उसको मतलब अपनाया गया, उसको उस पर विचार किया गया, रिव्यू किया गया कि ये वन टाइम कोर्स उस टीचर के लिए था और उसको सेफगार्ड करने के लिए 10 अगस्त 2017 से पहले तक जो शिक्षक थे उनके लिए वो सुरक्षित करने के लिए उसको स्वीकार किया गया। दिस कोर्ट हैड फर्दर क्लैरिफाइड वाइड पैराग्राफ 3 and 4 ऑफ द ऑर्डर डेटेड 10 दिसंबर 2024 passed in RPC diary number 4961 of 2024 titled as Vishwanath and others versus the state of Uttarakhand as under। यानी 10 दिसंबर 2024 का जजमेंट का पैराग्राफ 3 और 4 में इस बात को क्लियर किया गया है। जज साहब कहते हैं, however to avoid any confusion we again clarify that the 18-month diploma obtained by such persons who were in the employment as on 10th of August 2017 and who have completed the diploma course of 18 months would be treated as valid diploma holders for the purposes of applying in the other institutions or for promotional avenues। यानी ये सारे भूमिका को दर्शाते हुए लास्ट में कह रहे हैं कि मैंने ये आदेश दिया था 10 दिसंबर 2024 को क्लियर किया था। नीडलेस टू स्टेट दैट द क्लैरिफिकेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट अंडर रिव्यू। मतलब ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये अंडर रिव्यू के जजमेंट से ये प्रभावी होगा। कहने का मतलब वो हमेशा ही वैलिड थे, यानी इनवैलिड थे ही नहीं जो पहले से जॉब में थे 10 अगस्त 2017 से। 15 नंबर पॉइंट है द ग्रीवांसेस ऑफ द एप्लीकेंट्स हेयर इन दैट इनफ दैट through they are eligible as per the original judgment of this court dated 28th November 2023 and the clarification dated 10th December 2024 in as such much as the advertisement in the state of Uttarakhand is dated 29th May 2024 that is after the judgment was delivered on the 20th November 2023 the state of Uttarakhand is not considering their claim। कह रहा है कि मैंने 28 नवंबर 2023 को जजमेंट दिया था और उसमें अवैध मैंने घोषित ही नहीं किया था। क्लैरिफिकेशन डेटेड जो 10 दिसंबर 2024 को आया था और जो कह रहा है कि नवंबर 2023 के बाद जो कहने का मतलब जो वैकेंसी आई थी वह 29 मई 2024 को आई थी। तो ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो इनवैलिड थे, मैंने कभी कहा ही नहीं। तो उन अभ्यर्थियों को उत्तराखंड सरकार ने शामिल नहीं किया है और इसलिए वो क्लेम किए हैं, कंसिडरिंग देयर क्लेम उस पर विचार करने के लिए कहा है। इट इज सबमिटेड दैट इन द रिप्लाई गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट इट इज स्टेटेड दैट द सिलेक्शन प्रोसेस इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड एंड देयरफॉर द क्लेम ऑफ द एप्लीकेंट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड। जो सबमिशन दिया गया था आपने देखा होगा उत्तराखंड सरकार की जो अधिवक्ता के द्वारा कि सबमिशन जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीटेड हो चुका है, इसीलिए जो एप्लीकेंट्स पर हम विचार नहीं कर सकते। Sri Gopal Shankar Narayanan, learned senior counsel appearing for the applicant, submits that the information received under the Right to Information Act 2005 would reveal that there are 279 post vacants and number of applicants are 239। अब गोपाल शंकर नारायण जो पेटिशनर्स के वकील थे उन्होंने कहा कि आरटी एक्ट के द्वारा जब वैकेंसी के बारे में जानकारी ली गई तो 289 पोस्ट खाली है और एप्लीकेंट्स की संख्या मात्र 239 है। श्री शंकर नारायणन fairly states that the applicants do not intend to affect the selection process already done। जो एप्लीकेंट्स है वो सिलेक्शन प्रोसेस जो हमें पहले से हो चुका है उसको प्रभावित नहीं करना चाहता है। मिस्टर वंसजा शुक्ला, learned counsel appearing on behalf of the state on the contrary, submits that while the judgment dated 28th November 2023 this court had upheld the 2012 rules of the state of Uttarakhand which provided that a diploma of 2 years or equivalent was necessary for being appointed as teachers। She further states that any interference at this stage would cause the complications in the selection process already completed। अब जो उत्तराखंड सरकार की अधिवक्ता है वंसजा शुक्ला वो कह रही है कि सरकार ने उस समय 28 नवंबर 2023 को 2012 के रूल्स का समर्थन किया था, उसको सही माना था और अब मैं जो कोई इसमें छेड़छाड़ करूंगा तो ये जटिलताएं पैदा करेगी और सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीटेड हो चुकी है, इसमें काफ़ी समस्याएं आई। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई।
No doubt that this court has upheld the 2012 rules framed by the state government wide judgment dated 28th of November 2023. However, at the same time, this court has clarified that such of the teachers who were already in employment as on 10th August 2017 would be entitled to the benefits of the one-time scheme provided by the government of India. This court had held that such of the teachers who have completed the diploma course of 18 months would be treated as valid diploma holders for the purposes of applying in other institutions और फॉर प्रोफेशनल एवेन्यूज। अब जज साहब अपनी बातें बिल्कुल क्लियर कर रही है, नो डाउट, कोई शक नहीं। मैंने 2012 के रूल्स का समर्थन किया था, स्टेट गवर्नमेंट के उस रूल्स को मैंने समर्थन किया था, लेकिन 28 नवंबर 2023 के जजमेंट में ही मैंने ये कहा था कि ये 10 अगस्त 2017 से पहले जो नियुक्त शिक्षक है उनको सेफगार्ड करने के लिए उन्होंने कहा था कि ऐसे शिक्षकों की डिग्री वैलिड है। मतलब कहने का मतलब जो गवर्नमेंट्स इंडिया के द्वारा उन्हें वन टाइम बेनिफिट्स दिया गया था वो उस बेनिफिट्स को लेने के योग्य हैं। तो इसलिए जो भी टीचर्स इस कोर्स को किए हैं वो वैलिड डिप्लोमा होल्डर्स है सभी पर्पस के लिए, अदर इंस्टीट्यूशंस के लिए, प्रोफेशनल एवेन्यूज के लिए। अब यहाँ चूँकि अधिवक्ता महोदया ने अदर इंस्टीट्यूशंस को अलग ढंग से समझाने का प्रयास किया था, इसलिए जज साहब क्लियर कर रहे हैं। Indisputably, the other institutions would also include the schools run by the state government. Other institutions का मतलब जो राज्य सरकार की जो स्कूल चलती हैं वो भी उसमें शामिल है, इसलिए वो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। We find that the case of the present applications would be covered by the court clarification dated 10th December 2024. हम पाते हैं कि जो प्रेजेंट एप्लीकेशन जो है उसका क्लारिफिकेशन 10 अगस्त 2024 को के समतुल्य ही है, उससे वो एप्लीकेंट्स कवर्ड है। We therefore direct the state government to consider the claim of the applicants in the accordance with the clarification dated 10th December 2024, and if the applicants are found to be eligible to appoint them in accordance with law, the same shall be done within a period of 3 months from today. अब जज साहब ने बिल्कुल कह दिया है कि 10 अगस्त 2024 के आदेश को पालन करते हुए अगर एप्लीकेंट्स एलिजिबल है, अगर अकॉर्डेंस लॉ के अकॉर्डिंग वो एलिजिबल है, अपॉइंट के योग्य हैं, तो उन्हें 3 महीने के अंदर उनकी नियुक्ति की जाए। We further clarify that while doing so, the state government would not appoint the selection already conducted, which has reached finality. अब जज साहब सरकार को भी राहत दे रही है कि जो भी आपने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है उसको रीओपन करने की जरूरत नहीं है, जो पूर्णतः पहले ही समाप्त हो चुकी है उसमें उन शिक्षकों को समाहित कर लीजिए कोर्स जो भी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग। द एप्लीकेशंस इज अकॉर्डिंगली डिस्पोज्ड ऑफ, और इससे एप्लीकेशन को डिस्पोज्ड कर दिया गया। साथियों वीडियो बहुत लंबा हो गया, अब अंत में मैं ये भी बता दूं कि बिहार के जो भी शिक्षक साथी हैं TRE 1 या TRE 2 के, TRE 3 के बारे में मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि मामला काफ़ी जटिल है, झूठ बोलने नहीं आता है हमें, सच्ची बात बताऊंगा। लेकिन TRE 1 और TRE 2 के अभ्यर्थी बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिहार में उनकी नियुक्ति निश्चित होगी। थोड़ा समय लग रहा है, धैर्य बनाए रखें, आपकी नियुक्ति निश्चित है। आप धैर्य से इतना समय आपने संघर्ष किया है तो थोड़ा और धैर्य रखिए, आपकी नियुक्ति बहुत जल्द होगी। साथियों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग समर्थन अवश्य दें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।